Hi guys, I hope I'm audible to everyone. So this is a quick session. Basically, I wanted to discuss a few things related to mock 1 and mock 2 that have been shared with you. So both mock 1 and mock 2 were targeting paper 1, and now mock 3 and mock 4 will target paper 2. So I wanted to give some general feedback related to both the mocks. So you must have received your individual feedback. So we will not talk about individual feedbacks here. We will talk about the things that some of the students are doing correct and some of the students are making mistakes, and so that this can be avoided in upcoming attempt. So the first thing to understand is, see, there's always a line missing for majority of students, that the following audit trail should be read alongside the model. I have almost in every video of mine told this thing, that you have to mention this line. So the first observation was that this line was missing for some of the students, that the following audit trail must be read alongside the model. So this is first thing. Now second thing which I observed was कि for example आपको चाहे जैसा मर्जी डेटा दिया हो तो आप लोग डेटा पे चेक्स तो लगाते हो, but what you don't do is you don't apply reasonability checks on the data. So this thing is missing in some of the exams sheets that I received, that reasonability checks were missing, and whatever checks that you are applying, you are doing it in Excel, but you are not presenting it in audit trail. सो लाइक जैसे आप डेटा चेक्स का एक सेपरेट टैब बनाओ और उसमें आपको लिखना है ऑडिट ट्रेल में दैट दिस वर्कशीट परफॉर्म्स द डिटेल चेक्स ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। तो आपको जो भी, जैसे हमने जैसे सिमुलेशन का डेटा था जब मॉक 1 में, तो उसमें हमें चेक करना है कि इंक्रीमेंट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। काउंट का आप चेक लगा सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू का चेक लगा सकते हो, मिनिमम वैल्यू का चेक लगा सकते हो, मीन 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। हमने ये भी बोला है कि जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम हिस्टोग्राम बनाकर भी चेक कर सकते हैं। सो जब भी हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चेक लगाना है, हम हिस्टोग्राम बनाकर एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड कंपेयर करके चेक्स लगाएंगे। तो नेक्स्ट फोकस शुड बी ऑन दी डिटेल्ड चेक्स. So some of you are not even mentioning the checks, some of you are mentioning the checks, but वो डिटेल नहीं है। जैसे आपने क्या मेंशन कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रही, आप एंट्रीज काउंट करके दिखा रहे हो, मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल रहे हो, लेकिन आप हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे, आप कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिखा रहे, आप एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड नहीं निकाल रहे ताकि आपको ये पता चले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा आया या नहीं है, तो वो मिस है ये। नेक्स्ट मिस विच आई ऑब्जर्व्ड वाज assumption section. मतलब there are some of the students who are not writing assumptions in detail. Guys, this is utmost important section. You have to mention मतलब n number of assumptions, 10 20 जितनी आप mention कर सकते हो, try to mention those assumptions and try to be as detailed as you can. Now, if I talk about the calculations portion, I'm not talking, the way of performing is obviously different for different candidates. So we don't compare that how you have performed. Basically, we compare what you have written versus what you have performed. So most of you are missing on the cell references. आप लोग column बोल देते हो. We have started from column A, we are going to column B. But exactly column A, column B से कौन से cell से start किया, कौन से cell पे आप checks लगा रहे हो, वो missing होता है। तो उससे क्या होता है, एक्सेल पे एग्जैक्टली वैसे नहीं प्रेजेंट कर पाते, वैसा प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज इज, एक तो मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग कॉलम रेफरेंसेस मिस कर रहे हो, सॉरी सेल रेफरेंसेस, आप कॉलम रेफरेंसेस दे रहे हो, आप सेल रेफरेंसेस नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज क्या मिस कर रहे हो आप लोग बेसिकली इज एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। मतलब although you are doing in detail in basically in your Excel, but you're not explaining in the same manner in your audit trail, due to which I am not able to make the same Excel senior audit trail the way you have prepared. So that gives an example of a bad audit trail. ये मिस है। तीसरा मिस ये है कि जब हम एक टैब बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने दूसरे टैब में भी सेम कैलकुलेशन करी, इट्स जस्ट दैट वी हैव चेंज समथिंग, से स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन की कोई वैल्यू चेंज कर दी, तो यहाँ पर एक रीजनेबिलिटी चेक लगना चाहिए कि अगर मैं इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूंगी तो वैल्यू सेम आ जाएंगी। ये चेक 99% स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं। सो ये चेक्स लगाने हैं, और चार्ट्स तक तो आप पहुंचते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप मॉडल बनाने पे इतना फोकस कर रहे हो कि आप यू एक्चुअली फॉरगेट दैट देयर आर चार्ट्स टू मेक, एंड यू एक्चुअली फॉरगेट दैट ऑडिट ट्रेल हैज टू गो साइमल्टेनियसली along with the model. It's not the model which is tested, it's the audit trail which is being examined.
सो चार्ट्स बनाना, चार्ट्स की डिटेल प्रेजेंटेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्डली आई सी जस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स हु आर एबल टू मेक द चार्ट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डोंट इवन रीच टू द लेवल ऑफ चार्ट. तो अगर आप ये सोचो कि अगर आप मॉक में नहीं पहुंच पा रहे तो आप एक्चुअल में कैसे पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां पे तो आपके पास प्रेशर भी रहेगा. Or at times, see, when you are mentioning the objective, when you are mentioning the purpose, I mean, you just try to mention all the calculations in that. So that is what it is not required. You have to brief it. आप लोग क्या करते हो, आप लोग बस सेम लाइंस जो आपको बैकग्राउंड में दी होती है, आप वो सेम लाइंस ही कॉपी कर रहे हो, आप कोई सेग्रीगेट ही नहीं कर रहे. आप क्या करते हो, आप जो कैलकुलेशंस वाला पोर्शन कर रहे हो आप वो समझा रहे हो. हमें ऐसे नहीं समझाना, हमें 3 to 4 लाइंस में बैकग्राउंड समझाना है, फिर 5 to 6 लाइंस में पर्पस समझाना है कि एग्जैक्टली क्या पर्पस है. हम पर्पस समझाते वक्त कोई सेल रेफरेंसेस या कॉलम रेफरेंसेस थोड़ी ना देते हैं, तो वो पर्पस समझाते वक्त भी आप कॉलम रेफरेंसेस दे रहे हो. मतलब डेटा समझा रहे हो और आप उसमें मेंशन नहीं कर रहे हो कि डेटा का सोर्स कहाँ से आया है, डेटा आया कहाँ से है, डेटा पे चेक्स कौन से लग रहे हैं. डेटा के रीजनेबिलिटी चेक सबसे बड़ा इशू है जो आप लोग नहीं अप्लाई कर रहे हो. पैरामीटर शीट वगैरह कर लेते हो, कैलकुलेशंस पे कर लेते हो, लेकिन कैलकुलेशंस में ना ऑडिटरी लिखने का एक तरीका होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पहला टैब बनाया तो हम बोल्ड में कर सकते हैं. इन दिस वर्कशीट से interest rates and repayments are calculated. ठीक है, ये बोल्ड में हमने इस तरीके से कुछ ऐसा लिख दिया. फिर कहाँ से इसका डेटा आया, डेटा से इज लिंक थ्रू रॉ डेटा वर्कशीट, एंड जो भी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो कर रहे हो. फिर आप मान लो शीट 2 पे गए जिसमें आपने कोई उसका नाम दे दिया मॉर्गेज 2, तो फिर से आप एक लाइन लिखोगे कि इन दिस वर्कशीट दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग. फिर उसने रीजनेबिलिटी चेक लगाओ, डिटेल चेक्स लगाओ. सो पॉइंट इज कि जितने भी हम लोग टैब्स बना रहे हैं, अगर हम थर्ड टैब पे जा रहे हैं तो फिर से इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, फिर से इस पे टैब वाइज चेक्स लगाना बहुत जरूरी है. तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ डेटा पे चेक्स लगाते हो, टैब तक आते आते चेक्स का टाइम नहीं मिलता, आप चेक्स भूल जाते हो. तो टैब वाइज चेक्स भी लगाना बहुत जरूरी है. यहाँ पर मुझे चार्ट्स नहीं चाहिए, आप लोग मुझे टैब में चार्ट्स दे रहे हो, वो नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल में रहेंगे. आपके चार्ट्स जब सिर्फ समरी आपके जो और आपको सिर्फ एक्सेल में रखने हैं, और आपने जो चार्ट्स बनाए हैं वो बस एक लाइन में चार्ट्स वाले सेक्शन में आपने एक्सप्लेन करने. So I think all those who have submitted their mocks, they must have received the feedback on that. So anything related to the feedback that you want to discuss. See, because this session is for you guys only. I thought ki after first 2 mocks, I will take one quick session. I will come live and will address the common feedback. And after next 2 mocks, I will again come live and will address a common feedback. So this was the general issue, and individually I have given individual marks as well. तो टेक दोस मार्क्स एज वेरी सीरियसली, बिकॉज आप ये सोचो कि मतलब देखो इशू सबसे ज्यादा यही है कि आप लोग ऑडिट ट्रेल साथ में नहीं बना रहे हो, आप लोग ऑडिट ट्रेल लास्ट के लिए छोड़ते हो. आपके ऑडिट ट्रेल में वो डिटेल्स नहीं होती जो आपकी एक्सेल में डिटेल्स होती है. सो एक्सेल हैज टू बी, एक्सेल इज डिटेल बट ऑडिट ट्रेल इज नॉट दैट डिटेल. समटाइम्स यू अप्लाई रॉन्ग फॉर्मूला ड्यू टू विच आपका कुछ मतलब अमाउंट निकल के ही नहीं आता है, कुछ वैल्यू नहीं आ रही, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है. वहां आप मॉडल वाली साइड से भी गए हो, वहां ऑडिट ट्रेल वाली साइड से भी गए हो. तो ये फोकस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कितना मॉडलिंग पे करना है, कितना मुझे ऑडिट ट्रेल पे फोकस करना है. सो इट्स नॉट द फोकस शुड नॉट बी ऑन द मॉडलिंग, फोकस again and again has to be on audit trail only. But in order to perform audit trail, we need to do the calculations. So anything related to the feedbacks that you want to discuss, this is for this session is for you. So I am ready to discuss any feedback. If you have, please feel free to do so. Otherwise, I don't have much to say. I have already given you individual feedbacks. I've given you general feedbacks. Now, anything related to the feedbacks that you want to discuss. And there are still some students, when the team was doing video tracking, have observed, and even when I asked, because of the result of the like mock, I have asked certain students that it seems that you have not even gone through the basic details. Because see, when you are presenting charts in audit trail, charts have to be given in the summary. Charts are not meant for the audit trail. So that means वो basics ही clear नहीं है.
तो there were some of the students who admitted that we have not watched all the videos. So it's my request to every one of you, because आपके पेपर 1 का एक तरीके से मॉक खत्म हो चुका है, तो पेपर 1 की पूरी मतलब आपकी प्रिपरेशन अप टू 100% होनी चाहिए. तो for that, just make sure that you're not skipping even a single lecture of paper 1. Try to practice as many past papers related to paper 1. And I always say, do not practice any of the question in oral format. It always has to be in written format. Practice limited questions, but those have to be in written format. See the question, try to build the model. Based on the model, try to do your audit trail. And if we do all this, obviously it takes 3 to 3.5 hours. If you cannot give 3 to 2.5 hours in a single day, you can diversify. Like you can read the model, maybe 1.5 hours में आधा मॉडल कर लो और आधी ऑडिट ट्रेल कर लो, नेक्स्ट डे फिर 1.5 hours में रिमेनिंग मॉडल और रिमेनिंग ऑडिट ट्रेल. लेकिन टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन अगर कुछ नहीं है तो आई कैन सी जस्ट हार्डली 3-4 स्टूडेंट्स ओनली लाइव. रेस्ट आर ओके विद द वीडियोस एंड द फीडबैक्स दैट दे आर रिसीविंग. ठीक है, देन इफ देयर इज नथिंग, देन विद दिस वी कैन रैप अप. थैंक यू.